یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے جس کے سر پر ایک سینگ بنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سر کے بال جب بھی کسی حجام سے بنواتا تو اسے جنگلی جانور سے مروا دیتا۔ ارے بھائی، کیوں پریشان ہو؟ میں جب سے آیا ہوں سبھی پریشان اور ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں مجھے۔ جی بھائی، آپ کون ہیں؟ یہاں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے کچھ کام چاہیے تھا۔ میرا نام بلو حجام ہے۔ کیوں؟ آپ کو اپنے گاؤں میں کام نہیں ملا جو آپ کو یہاں آنا پڑا؟ بھائی وہاں کچھ کام بنتا تھا تو میں نے سوچا کہیں اور جا کر کام کیا جائے۔ اچھا، ایک بات کا ضرور خیال رکھنا، یا اپنے آپ کو حجام نہ بتانا۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہے جو میں حجام نام نہ بولوں؟ یہی تو بات ہے، اسی بات سے سارے گاؤں والے بہت پریشان ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے تاکہ میں بھی اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اس طرح وہ سارا قصہ بتانے کے بعد اسے واپس جانے کا کہہ دیتا ہے، اور وہ بھی یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بادشاہ حجام کو ہی کیوں غائب کرواتا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں بھائی، ایسی کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ جا کر بادشاہ سے پوچھ سکے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو اپنے پیاروں کا درد نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ بھائی درد کس کو نہیں ہوتا؟ کیا کریں، بادشاہ بہت ہی سخت مزاج اور گھمنڈی انسان ہے۔ جو بھی اس کے خلاف جاتا ہے وہ اس کو غائب کر دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں حجام کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یار یہ قصہ سن کر بہت حیرت ہوئی، وہ بادشاہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ارے بھائی، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تم بھی اپنے گاؤں لوٹ جاؤ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو۔ یہ سارا قصہ سننے کے بعد وہ گاؤں لوٹ جاتا ہے، اور ادھر بادشاہ کے سپاہی بھی حجام کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ ہر گاؤں جاتے اور واپس لوٹ آتے۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں کو کوئی حجام نہیں ملا؟ ہر بار خالی ہاتھ لوٹ آتے ہو۔ جی حضور، کچھ ایسا ہی ہے۔ ارد گرد کے گاؤں میں کوئی حجام نہیں ملا، باقی گاؤں دور ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے 2 دن میں حجام چاہیے۔ جو بھی ہو مجھے 2 دن میں حجام کا پتہ کر کے دو، ورنہ تم میں سے ایک نہیں بچے گا۔ حضور، سبھی گاؤں والے ڈرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں گاؤں میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہانے مجھے نہیں سننے، جو مرضی کرو، مجھے 2 دن تک حجام چاہیے۔ اس طرح وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے اسی بلو حجام کے گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ایک دکاندار سے ایک حجام کا پوچھتے ہیں۔ سنو بھائی، کیا ہمیں اس گاؤں سے حجام مل جائے گا؟ ہم کولک پور گاؤں سے آئے ہیں۔ جی بھائی، حجام تو مل جائے گا، لیکن اتنا دور آپ حجام کو ہی کیوں ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں؟ زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بادشاہ کا حکم ہے، وہ ایک اچھے حجام کی تلاش میں ہے۔ گستاخی معاف جناب، چلیں آپ لوگ کچھ آگے جائیں گے تو حجام کی دکان آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ سننے کے بعد سپاہی بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور حجام کی دکان کی طرف تیزی سے چل پڑتے ہیں۔ یہ کیا؟ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا؟ لگتا ہے آج بھی خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس طرح وہ ایک چلتے مسافر سے اسی حجام کا پوچھتے ہیں۔ رکے جناب، کیا آپ ہمیں اس حجام کا بتائیں گے؟ یہ کہاں ملے گا؟ ان کی دکان بند پڑی ہے۔ بھائی اس نے کہاں جانا ہے؟ کہیں کام پہ ہوگا یا اپنے گھر ہوگا۔ کیا آپ ہمیں اس کے گھر کا پتہ بتائیں گے؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں۔
कुछ कदम आगे जाएंगे तो सामने अकेली झोंपड़ी उसी हजाम की है। वो इसके घर का पूछकर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके घर पहुंचकर उसको आवाज़ देते हैं तो सामने से उसकी माँ आ जाती है। जी बेटा, आप कौन हो? आपको किससे मिलना है? अम्मा जी, हम कोलकपुर से आए हैं। उस गांव के बादशाह ने हमें भेजा है। अच्छा अच्छा, आप किस काम के सिलसिले में आए हैं? इतनी दूर सब खैरियत हो? जी अम्मा जी, हम हजाम की तलाश में आए हैं। बादशाह का हुक्म हुआ है कि अच्छा हजाम को ले आए, तो हमें आपके बेटे का बताया गया है। जी वो तो है, मेरा बेटा बहुत मेहनती और अच्छा काम करता है। आप बैठें, वो अभी आ जाता है। उसके आने का टाइम तो वैसे हो ही गया है। ये कहकर अंदर चली जाती है कि कुछ देर बाद बिल्लू हजाम आ जाता है और अपने घर के बाहर सिपाहियों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है। जी जनाब, सब खैरियत? आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? हम कोलकपुर गांव से आए हैं। वहाँ के बादशाह को हजाम की तलाश थी, तो आगे से आपका बताया गया। ये सुनने के बाद बिल्लू हजाम को शक हो गया कि ये उसी गांव से आए हैं। अच्छा, जिस गांव से मैं कुछ दिन पहले होके आया था, ये यहाँ तक पहुँच गए। ये अभी सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी माँ आ जाती है, तो माँ उससे कहती है। बेटा जी, ये पास के गांव के बादशाह के सिपाही हैं। ये तुमको लेने आए हैं। जी माँ जी, मुझे पता चल गया है। चलें, मैं देखता हूँ, आप अंदर जाएं। आप जाएं, मैं कल हाजिर हो जाऊँगा। काफ़ी दूर जाना है, तो अभी बहुत देर हो जाएगी। अम्मा जी, आप इसको समझाएं, बादशाह ने जल्दी आने को कहा था। बेटा चले जाओ, वो काफ़ी इकरार कर रहे हैं। एक दिन की ही तो बात है। इस तरह बिल्लू अपनी माँ के कहने पर ज़रूरत के मुताबिक सामान लेकर उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो महल में पहुंच जाते हैं और बादशाह हजाम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिल्लू हजाम के लिए खाना और आराम करने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया गया है। जबकि बिल्लू परेशान भी होता है और अंदर से कुछ सोच भी रहा होता है। खैर, रात हो जाती है और वो सो जाता है और अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है और इतने में बादशाह अपने सर का ताज उतार देता है और बिल्लू सर का सींग देखकर दंग रह जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है। अच्छा, तो ये बात है। इसलिए बादशाह हर हजाम को मरवा देता है ताकि उसका ये राज बाहर किसी को पता न चले। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? जल्दी से बाल बनाओ, और हाँ, ये राज कभी किसी के आगे मत खोलना। जी हुजूर, मैं ये राज कभी फाश नहीं करूँगा। बहुत अच्छे, अब जल्दी से बाल बनाओ और जाओ। ये सुनकर बिल्लू भी कुछ हौसले में आ गया कि मुझे जाने देगा, और इस खुशफहमी में इसने जल्दी से बादशाह के बाल बना दिए और कहा। हुजूर, आपके बाल बन गए हैं, और कोई हुक्म है तो बता दें, नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं, रुको, अपना मुआवजा ले लो। नहीं नहीं बादशाह सलामत, आपसे कैसा मुआवजा, आप रहने दें। नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तुमको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? चलो मेरे साथ। इतने में बादशाह बिल्लू को उसी जंगली जानवर के पास ले जाता है। उसको कहता है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम मेरा राज कभी भी फाश कर सकते हो, इसलिए मैं अपना ये राज कभी भी फाश नहीं करना चाहता। बादशाह सलामत, ये क्या बात है? मेरा क्या कसूर है? आप गलत कर रहे हैं। यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे जितने भी आए हैं, सभी का यही हाल हुआ है। नहीं बादशाह सलामत, मुझ पर रहम करें।
मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं, लिहाजा मुझे जाने दें। मैं आपका राज कभी फाश नहीं करूँगा। बिल्लू काफी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बादशाह ने एक ना सुनी। और काफी देर बाद बिल्लू बोला, जो उसने पहले से ही सोच रखा था। अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो क्या शर्त है? मैंने सुना है कि जो भी इस काली कोठी में गया है वो वापस नहीं आया। अगर मैं वापस आ गया तो मैं जो मांगूंगा आपको देना होगा। ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपनी जान बचा भी सकते हो या नहीं। आप वादा करें, अगर मैंने अपनी जान बचा ली तो क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे? वरना मैं आपका राज फाश कर दूंगा। तुम जिंदा होगे तो ही राज फाश करोगे। फिर भी हाँ, अगर तुम जिंदा बच भी गए, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इस तरह उसे जंगली जानवर के साथ छोड़ दिया जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद सिपाहियों को भेजकर उसका पता करवाया गया तो वो जिंदा था और बादशाह के पास आ जाता है। बादशाह उसे देखकर बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपकी सल्तनत चाहिए। गुस्ताख, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम एक सल्तनत के बादशाह के सामने खड़े हो। हुजूर, फिर मैं आज आपका राज फाश कर दूंगा। या तो आप अपना वादा पूरा करें या सभी अहले इलाका के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सुनकर बादशाह को अपना सब खोना पड़ गया और सारी जिंदगी एक फकीर की हालत में रह गया।